السلام علیکم دوستوں میں آج آپ سے جس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آیا ہوں یہ ہے کہ ہمارے جو زیادہ تر بچے ہیں ان کا فیوچر کیوں نہیں اتنا برائٹ ہو پاتا، حالانکہ وہ اچھی تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں کسی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود کیوں یورپ اور امریکہ کے بچوں کو ہی جو ہے وہ برائٹ فیوچر نصیب ہو پاتا ہے۔ ہمارے جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کوئی ایک اچھی نوکری حاصل کر لیتے ہیں، وہ بھی اگر سفارش سے اور پیسوں سے ان کو مل جائے تو اچھے، ورنہ وہ بیچارے جو ہیں وہ نوکریوں کے لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں۔ جو کچھ چند ایک جن کو یورپ آنے کا موقع مل جاتا ہے، بیچ میں سے وہ اپنے اسکلس دکھا پاتے ہیں اور کچھ اپنے فیوچر کو اسٹیبل کر پاتے ہیں۔ ادروائز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں دنیا کے موسٹلی بلینئر جو ہیں وہ ان کا تعلق امریکہ اور یورپ سے ہی ہے۔ ابھی اگر چائنا کی بات کی جائے تو وہ چائنا سے بھی جو ہے وہ لاسٹ بلومبرگ کی اگر رپورٹ دیکھی جائے تو اس کے حساب سے جو 2018 میں سب سے زیادہ بلینئر جو ہیں لاسٹ 10 ایئرز میں ہیں وہ 259 بلینئر جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ چائنا سے تھا، اور جس میں 63 جو تھے وہ انڈر 40 تھے، مطلب 40 سال کی عمر سے کم تھے۔ اور اگر موسٹ جو ہے دنیا کے جو ہے جینیس اور بلینئرز اور امیر ترین لوگوں کی بات کی جائے تو دوستو آپ کو یہ بات سن کو شاید حیرانگی ہو کہ زیادہ تر دنیا کے جو بلینئرز ہیں وہ یا تو پڑھے لکھے ہے ہی نہیں، اگر ہیں بھی تو اسکول یا کالج لائف تک جو یورپ اور امریکہ میں جو لازمی تعلیم ہے وہاں تک ہی جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی سکلز اور اپنے گریٹ آئیڈیاز کی وجہ سے جو ہے وہ بلینئر بن گئے۔ تو امریکہ میں جو آپ کو پتہ ہے جو سب سے زیادہ بات زیر بحث اور ڈسکس ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا کے جو جینیس لوگ اور بلینئرز ہیں ان کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے۔ اس پر اگر تین لوگوں کے اگر انٹرویوز دیکھے جائیں، جیسے ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابس کا جو انٹرویو تھا جب 2007 میں اس نے آئی پوڈ کو انٹروڈیوس کروایا، تو 2003 میں آئی پوڈ کو انٹروڈیوس کروایا اور 2007 میں اس نے آئی فون کو انٹروڈیوس کروایا، تو وہ اس کا بھی کہنا یہی تھا کہ آپ کو جینیس ہونے کے لیے کالج ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایلن ماسک کا جب انٹرویو لیا گیا تو اس نے بھی یہی بات دہرائی کہ دنیا دوستو ایلن ماسک کی اگر بات کی جائے تو 1971 میں یہ ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوا اور بچپن سے ہی جو ہے کمپیوٹر کے ساتھ لگاؤ رکھتا تھا، تو کمپیوٹر کے ساتھ لگاؤ رکھنے کی وجہ سے کمپیوٹر پروگرامنگ جو ہے وہ اس نے سیکھی، اور 12 سال کی عمر میں اس نے پہلی اپنی جو کمپیوٹر ویڈیو گیم جو ہے وہ بنا لی، جو ویڈیو گیم اس کی اس وقت $500 میں بکی۔ 1989 میں یہ شخص جو ہے کینیڈا آ گیا اور کینیڈا کی پینسلوینیا یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لیا اور اپنی گریجویشن کی وہاں سے، اور اس کے بعد یہ 1995 میں امریکہ شفٹ ہو گیا، اور امریکہ میں اس نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر پہلی جو ہے زپ کمپنی جو ہے وہ سافٹ ویئر کمپنی بنائی، اور وہ کمپنی جو ہے ان کی مطلب ہے کہ اچھی کامیاب ہوئی، اور انہوں نے 1999 میں وہ زپ کمپنی جو ہے چند ملین کے عوض جو ہے وہ بیچ ڈالی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک آن لائن فائنانسنگ اور بینکنگ پروگرامنگ کے ساتھ ایک کمپنی جو ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس کروائی، اور اس جو آگے چل کر جو ہے وہ کمپنی پے پال کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کمپنی میں انہوں نے مطلب ہے کہ اچھے خاصے پیسے کمائے، اور اس پیسے کمانے کی وجہ سے اس نے 2003 میں جو ہے ایک اور مزید کمپنی جو ہے اسپیس ایکس کے نام سے بنائی۔ اسپیس ایکس جو کمپنی اس نے بنائی ایلن ماسک نے، اس کمپنی میں انہوں نے جو دنیا کو اسپیس پر بھیجنے کے لیے جو ہے ریسرچ کا کام شروع کیا، اور اس کو انہوں نے جناب جی اپنا جو ہے کافی انویسٹمنٹ کی۔ شروع میں تو اس کو
कंपनी में बहुत नुकसान हुआ, कामयाब नहीं हुआ। इसने कई तजर्बात किए स्पेस में लोगों को भेजने के, और वो उसके नाकाम हो गए। फर्स्ट शटल जो है इसकी वो स्पेस में भेजी तो वो नाकाम हो गई, नहीं पहुंची। दूसरी शटल भेजी वो भी नहीं पहुंची। तीसरी शटल भेजी नहीं पहुंची। जबकि तीसरी शटल के बाद तो ऐसा हुआ कि लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इसे कहा कि भाई तुम कोई नौकरी वोकरी कर लो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो लेकिन इस शख्स ने हिम्मत नहीं हारी। इसने चौथी बार फिर जो है रिस्क लेने का, चौथा रिस्क जो था वो ऐसा रिस्क था कि जो है इसने अपना घर भी नीलाम कर दिया और इसने अपनी बाकी कंपनियों को जो थी वो बैंकों के पास रखकर इतना बड़ा कर्ज उठा लिया कि अगर ये चौथी बार नाकाम हो जाता तो इसका जो कर्ज, उसकी वो कंपनियां तो जाती बल्कि अपनी बाकी ज़िंदगी ये बैंकों के कर्जे ही उतारता रहे। तो लेकिन चौथी जो तजर्बा था इसका वो कामयाब हुआ और इनकी शटल जो है वो स्पेस में पहुंची और उसके बाद फिर ये इनकी कंपनी को एक बूस्ट मिला। जब इनकी कंपनी को एक बूस्ट मिला तो फिर इन्होंने पैसे को, तो टेस्ला कंपनी जो थी वो एक्चुअली उसको बनाने वाले जो थे दो आदमी थे, मार्टिन और मार्क के नाम से मशहूर थे। ये लोग तो इतने इस कंपनी को बनाने के बाद इतने कामयाब नहीं हो सके, बल्कि कंपनी जो थी वो काफ़ी खसारे में जा रही थी। तो 2009 में एलन मस्क ने जो है इसके $30 मिलियन के साथ जो है इसके जो है 20% इसकी रॉयल्टी खरीदी। जब 20% इसकी रॉयल्टी खरीदी 2003 में इसने इसकी रॉयल्टी खरीदी और 2009 में ये इस कंपनी का CEO बन गया। जब इसका कंपनी का CEO बना तो उस वक्त तक ये कंपनी जो थी काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ चुकी थी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम्स में चल रही थी। फिर इसने इस कंपनी को जो है एज ए CEO जो है जो शेयर मार्केट में इंट्रोड्यूस लिस्टेड करवाने का फैसला किया और शेयर्स मार्केट में जब इन्होंने इसको 2009 में लिस्ट करवाया तो $20 पर शेयर के हिसाब से इसका शेयर जो है मार्केट में रखा गया और लिस्ट करवाया। और फिर इस टेस्ला कंपनी के थ्रू एक नया जो तजर्बा किया गया, इन्होंने मार्केट में इलेक्ट्रिक कार जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया 2013 में। तो और 2013 में जब इलेक्ट्रिक कार जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई और उस पर रिसर्च करी कि तो आगे चल के ये कंपनी जो है इसको एक बूस्ट मिला उस इलेक्ट्रिक कार, पहली इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से। और 2017 के बाद उस कंपनी को जो है वो फिर ब्रेक नहीं लगा और चूँकि 30% रॉयल्टी जो थी 20% रॉयल्टी इसके पास थी और उसके जो शेयर्स होल्डर थे, शेयर्स मार्केट में भी 20% शेयर्स का ये मालिक होने की वजह से जो कंपनी का जो है जो जब शेयर्स जो है वो 2019 में बूस्ट किया तो वो शेयर जो है 2019 में $700 को क्रॉस कर गया। अभी 2020 में उस शेयर को $750 पे चला गया और उसी वजह से ये हुआ कि ये शख्स जो कि 2019 तक 35वें नंबर पे दुनिया का अमीर तरीन आदमी होने का दावा करता था और 7 जनवरी 2021 को इसको दुनिया का अमीर 195 बिलियन के साथ दुनिया का अमीर तरीन आदमी डिक्लेयर कर दिया। अब जब इस इंटरव्यू में लोगों से पूछा गया कि भाई आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जो लोगों को इतनी आपकी कामयाबी जो है पता लग सके कि जो लोगों में कौन सी स्किल्स होना जरूरी है, तो उसमें इसने भी उसी बात को दोहराया कि भाई कामयाबी और आपके जीनियस होने के पीछे आपकी तालीम का कोई अमल दखल नहीं है। आपका ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर हों तो भी आप कामयाब होंगे। आपको अपने स्किल्स और अपनी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो आपका काम करना है वो आपको जो है आपकी जो है क्वालिटी को और आपकी एबिलिटी को बढ़ाता है और आपकी जीनियस शख्स को जो है बाहर निकालता है। 20-25 साल में जो ज़्यादातर लोग जो बड़ी तेज़ी से आगे आए उनमें गूगल कंपनी के मालिक लैरी पेज एंड सुंदर पिचल और जेफ बोजेस और मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स और एलन मस्क, ये सब वो लोग हैं कि जिन्होंने काम जो है छोटे छोटे गैराज से या अपने घरों से या किराए पे छोटी दुकानें लेके अपना काम शुरू किया और अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटी को जो है वो दुनिया के सामने रखा और नए आइडियाज़ और नए जो है स्किल्स जो है वो दुनिया को शो किए, जिसकी वजह से दुनिया जो है
इंफ्रास्ट्रक्चर और ये लोग जो हैं वो दुनिया की सतह पर पहुंच गए। और इसीलिए हमें ये देखना है कि हमारे बच्चों को वो जो है ये माहौल या ये स्किल्स जो हैं क्यों नहीं बाहर माहौल नहीं मिलता, या उनकी स्किल्स जो हैं क्यों नहीं बाहर निकलती, या उनको जो है वो हम क्यों नहीं इतना तैयार कर पाते कि हमारे बच्चों में भी ये स्किल्स और ये जीनियस जो है उनका बाहर निकल सके। तो उसके लिए हमें जो है अपने बच्चों का यूरोपियन और अमेरिकन बच्चों से मुशाहिदा करना ज़रूरी है। मुशाहिदा क्या है कि मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिका में और यूरोप में जब बच्चे स्कूल में तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो बच्चों को वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर ले जाया जाता है, मुख्तलिफ़ इंडस्ट्री के जो हैं उनके दौरे करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों में और उनको भेजा जाता है। यहाँ से जर्मन में जो सिस्टम है कि जर्मन बच्चों को जो अच्छे जीनियस बच्चे होते हैं उनको अमेरिका और दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है। फिर उनको जब वो अंडर मैट्रिक होते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ जॉब्स पर भेजा जाता है ताकि वो जो उनके अंदर जो असल जो उनका फ़न है, जो उसका हुनर है, उनको बाहर निकाल सकें। जब वो मुख्तलिफ़ जॉब्स में जाते हैं, बस फिलहाल एक बच्चा जो है वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको जो है जब हॉस्पिटल में भेजते हैं, वो जब हॉस्पिटल में जाता है और काम करता है दूसरे डॉक्टरों के साथ और नर्सिस के साथ, तो उसको अपनी एबिलिटी का अंदाज़ा हो जाता है कि आया मैं डॉक्टर बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता, और ये फील्ड जो मैंने चुनी है ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं है। तो फिर उसके अगेंस्ट जब वो अपना जहन चेंज करना चाहता है फिर उसको मुख्तलिफ दूसरी जॉब्स में भी भेजा जाता है, ऑप्शन दी जाती हैं। और वो दूसरी जॉब्स में भेजने का ऑप्शंस जो है वो उनको उनके टीचर जो हैं उनकी स्कूल की जो तालीम होती है जो उन्होंने हासिल की होती है 2-4 साल में 10 साल में मैट्रिक तक जो स्कूल में पढ़े होते हैं, उनके स्कूल के टीचरों ने जो उसका मुवाखज़ा किया होता है उसकी बेस पर फिर उनको डिफरेंट जॉब्स पे भेजा जाता है। और उसके बाद फिर वो अपना जो है सही जो आइडियल रास्ता होता है, जो उनका बेसिकली जो उसका अंदर उनका जीनियस होता है उसको सिलेक्ट कर पाते हैं। हमारे मुल्क में तो ये एक तालीम का ये सिस्टम है, एक तो ये कि तालीम महंगी बहुत ज़्यादा है और आम आदमी की अप्रोच में नहीं है, जिसकी अप्रोच में है वो जो है हमारे ज़्यादातर जो है बस यही होता है कि घर में वालिदैन जो है उन्होंने पहले से डिसाइड किया होता है कि हमने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। अब बच्चा जो होता है उसमें क्वालिटी होती है मैकेनिक बनने की और उसके ऊपर बोझ होता है इंजीनियर बनने का, तो वो ना मैकेनिक बन पाता है और ना वो इंजीनियर बन पाता है। वो आगे चल के जो है अगर वो मजबूरी की हालत में इंजीनियर बन भी जाए तो वो इतना अच्छा इंजीनियर बन नहीं पाता, क्योंकि वो डंडा दे के उसको इंजीनियर बनाया होता है। इसी तरह जो डॉक्टर बनते हैं या वो मतलब है कि जो अपना दूसरी फील्ड में जो लोग जाते हैं वो इतने प्रोफेशनल या इतने शाइन नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो पेशा जो उन्होंने सेलेक्ट किया होता है वो उनको सेलेक्ट करवाया गया होता है, वो उनकी स्किल्स और उनकी जीनियस होने के साथ उसका ताल्लुक नहीं होता है। जो उनकी अपनी स्किल्स होती हैं, अपनी एबिलिटी होती हैं, वो किसी और काम में होती हैं, और वो और काम जो होता है वो उसको क्योंकि उनके पास खुद सेलेक्ट करने की ऑप्शन नहीं होती, लिहाजा वो उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते और वो फिर लिहाजा दोस्तों मेरी आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को जो है मौका दें खुद सेलेक्ट करने का, अपने बच्चों को उनके जीनियस को बाहर निकालें, उनकी जो एबिलिटी है उनकी स्किल्स को बाहर निकालें, ताकि वो आगे चल के अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए वो भी कोई बिलियनियर या कोई जीनियस आदमी बन सके। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आइंदा इंशाल्लाह ताला कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।